ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں، انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے، بیلٹ باکس کے کھلنے کے بعد فارم 45 کی حیثیت نہیں رہتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پی بی 14 نصیر آباد میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری سے متعلق درخواست خارج۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ثمرات، سرمایہ کاروں کا حکومت پر مکمل اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 82,000 کی نفس کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، سماجی روابط کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور کثیر جہتی امور پر ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ ساکڈار اور روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اورچک کے درمیان دستاویز کا تبادلہ، تجارتی وفود کے تبادلوں کے حوالے سے بھی مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان کا بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان انٹرنیشنل کوریڈور اورچک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ ISPR امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے سفارتی اسناد صدر جو بائیڈن کو پیش کر دیں۔ عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے واشنگٹن اسلام آباد کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ علاقائی سلامتی کے لیے تعلقات اہم ہیں، دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون کو سراہتے ہیں صدر جو بائیڈن۔ باہمی اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح، رضوان سعید شیخ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں روایتی میلے بحال کرنے کا حکم۔ ہر شہر کی خوبصورتی کے لیے PHA بنانے کا اعلان۔ ہر شہر میں ڈولفن فورس قائم کرنے اور ساہیوال میں کارڈیولوجی بلاک جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ پاک پتن میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے جامع پلان طلب۔ ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی نااہلی ہر شعبے میں عیاں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی بار کمی کے باوجود فائدہ عوام کو منتقل نہیں کیا جا سکا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہیں لائی جا سکی۔ صوبائی حکومت کی خاموشی پر عوام کا اظہار تشویش۔ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں نمایاں کمی۔ کرایوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے صوبے بھر کی انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنرز میدان میں آ گئے، بس اور ویگن اڈوں پر چھاپے، زائد کرایہ وصول کی نااہلی کی انتہا، اپنے ہی علاقے کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ گنڈا پور برادران کا تحفہ، ان کا لگایا ہوا نااہل کنٹرولر امتحانات بچوں اور والدین کے لیے درد سر بن گیا۔ 9ویں 10ویں کے امتحانات میں تقریباً 400 طلباء کا رزلٹ تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ تقریباً 2000 طلباء کی ری چیکنگ درخواست پر بھی کوئی کام نہ کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سینکڑوں طلباء کا مستقبل تاریک اور طلباء کو لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ کے لیے دفعہ 144 لگا دی۔ پنجاب کے 12 شہروں میں اتوار 22 ستمبر کو دفعہ 144 لاگو ہوگی۔ امیدواروں اور نگران عملے کے علاوہ کوئی بھی شخص امتحانی مراکز میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
100 गज के फासले तक गैर मुतालिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आए। इम्तहानी मराकज़ इर्द गिर्द हर किस्म का हथियार, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स लाने पर पाबंदी। किसी भी किस्म के एहतजाज या मुजाहरे की इजाज़त नहीं होगी। SIFC की मुआवनत से पेट्रोलियम के शोबे में अहम पेशरफ्त। असासाजात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक इकदाम के लिए पाकिस्तान सोवरेन वेल्थ फंड के तहत 4 बड़ी तेल और गैस कंपनियां मुंतखब। OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड शामिल। नई हुकूमती पॉलिसियों की मदद से हाइड्रोकार्बन की तलाश में मजीद तेजी आएगी। अफगानिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात, पाकिस्तान ने आलमी ताउन की अपील कर दी। अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती में फितनाउल खवारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस है। UN मॉनिटरिंग टीम की 34वीं रिपोर्ट में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास में इजहार ख्याल। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। इसराइली की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। गजा पर इसराइल की शदीद बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद, 54 से ज़ायद ज़ख्मी। रफ़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हाथों इसराइल के 4 फ़ौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इसराइल से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। करारदाद मंजूर, 124 मुल्कों की करारदाद की हिमायत। इसराइल मकबूजा इलाके खाली करे और आलमी कवानीन की पासदारी यकीनी बनाए, करारदाद का मतन। लबनान पर इसराइली हाई टेक हमले, पेजर्स धमाकों के बाद वॉकी टॉकी सेट फट पड़े, 20 अफराद जाँ बहक, 450 से ज़ायद ज़ख्मी। अमेरिका का डिवाइस हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। इसराइल लबनान कशीदगी के खात्मे और गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें करते रहेंगे। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में एक दहाई के बाद दोबारा इलेक्शन का दौरा। कश्मीर मोदी सरकार के आर्टिकल 370 खत्म करने का बदला लेने के लिए तैयार। मोदी सरकार की मकबूजा वादी में अमन, खुशहाली और रोजगार के तमाम वादे खोखले। 1951 से अब तक मकबूजा वादी में कभी भी आज़ाद और शफाफ इलेक्शन नहीं। ज़हनी दबाव का शिकार। जिला बलरामपुर में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस के कांस्टेबल अजय सिद्धर जंग का 19वां दिन। पाक फौज ने सियालकोट जम्मू सेक्टर में दुश्मन के 40 टैंक तबाह किए। 3 अफसर, 4 JCOs और 102 सिपाही कैद। कसूर और केम खरन में दुश्मन को कई मील तक उसके अपने ही इलाके में पीछे धकेल दिया। सिंध राजस्थान पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरे मैच में कौमी विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर की। पहला मैच मेहमान टीम के नाम रहा था। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप 7वें मैच में आज स्टॉलियंस और डॉल्फिन्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। छठे मैच में मार्कोर्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से हराकर अपनी फतोहात का सिलसिला जारी रखा। पॉइंट्स टेबल पर मार्कोर्स अपने तीनों मैचेस जीतकर 37 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की भी इकबाल स्टेडियम में नुमाइश की जाएगी। कराटे कॉम्बैट लीग इंटरिम लाइटवेट बेल्ट टाइटल, पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की एक और फतह। ब्राजीलियन फाइटर ब्रोनो एसेस को शिकस्त दी। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद अभी तक कराटे कॉम्बैट लीग में नाकाबिल शिकस्त हैं। शाहजेब रिंद ने इससे कबल 5 फाइट्स की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वर्ल्ड टाइटल एक बार फिर अपने नाम करने पर शाहजेब रिंद को मुबारकबाद। और कश्ती रानी के कदीम मुकाबले अमेरिका कप के चैलेंजर्स सीरीज, बरतानिया की एनोस बर्फानिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बरतानवी टीम ने स्विस टीम एलंगी को बेस्ट ऑफ 7 सीरीज में 5-2 से शिकस्त दी। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला अमेरिकी और इतालवी टीम के दरमियान रेस करेगी। फाइनल की फाइटर टीम आइंदा दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ समुद्र में उतरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। बैलेट बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 की हैसियत नहीं रहती। PB14 नसीराबाद में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी से मुतालिक दरख्वास्त खारिज करते हुए 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत हकायक और शवाहिद पर फैसला करती है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करना ज़रूरी है। वो दुश्मन भी हों तो फैसला वोट पर ही होगा। अदालत ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त खारिज करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी का फैसला बरकरार रखा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 1530 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,000 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इसके बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उतार चढ़ाव जो कभी हमें लगता था कि नीचे है, इसमें स्लम्प है, लेकिन अब वो बुलंदी की तरफ जा रहा है। और आसिफ जो PTV न्यूज़ नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वजूहात मालूम करते हैं। जी नौरीन, आगाह कीजिएगा। जी, आज सुबह से ही जो है वो मार्केट हमें काफ़ी ऊपर जाती दिखाई दे रही है। बहुत तेज़ी है मार्केट में और इसकी जो बड़ी वजूहात है वो हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसीज़ हैं, जिस पर अब सरमायाकारों का एतमाद जो है वो बहाल हो चुका है। रूस के नायब वज़ीर आज़म हैं, उनका पाकिस्तान का दौरा यकीनन दोनों ममालिक के लिए खुशाइंद है, जिसमें मेशत, तिजारत और तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन के लिए जो मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं वो एक बेहतरी की तरफ जो है इशारा देते हैं और उसके भी मार्केट पर हमें बहुत पॉजिटिव असरात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी जो मरकज़ी बैंक है उसका 5% जो है वो बेसिस पॉइंट्स में कमी जो है उसके ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट पर बल्कि तमाम एशियाई ममालिक जो हैं उनकी मार्केट पे भी हमें काफ़ी मस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। ये दो एक बड़ी वजूहात हैं। इसके अलावा जो हमारा करंट अकाउंट है वो 7 करोड़ 50 लाख डॉलर जो है वो सरप्लस में रहा है। जो हमारा टेक्सटाइल का शोबा है वो रवा माली साल के पहले ही 2 माह में जो है 5% जो है उसकी बरामदात में इजाफा हुआ है, जबकि IT का शोबा जो बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसमें जो सालाना बुनियाद पर 27% तक जो है उसके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। और इसके अलावा जो फूड इंपोर्ट बिल है जिसकी वजह से एक जो दालें हैं, ड्राई मिल्क है और ऑयल है जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो उसमें भी
18% तक जो है वो कमी आई है और हमारी जो तरसीलात ज़र है उसमें भी मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को बूस्ट अप करने में, उसको बेहतरी की जानिब गामजन करने में या उसमें तेज़ी के जो हैं वो तरफ ले जाने में जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के ज़रिए मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की तरजीहात बिलख़ुसूस मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तजारत और सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, समाजी रवाबित के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीर जहती उमूर पर हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बरतानिया में मुकीम लाखों पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के दरमियान पुल की हैसियत रखते हैं और उनका दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी में एक कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तान और रूस ने तिजारत, सनत, तवानाई, अवामी रवाबित और तालीम के शोबों में ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को माशी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का भी इज़हार किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की रूसी हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानिए नमरा सुहेल की इस रिपोर्ट में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ पाकिस्तान के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम $1 अरब तक पहुँच जाना इंतहाई खुशाइंद है। इसहाक़ डार ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और गजा के मामले पर पाकिस्तान और रूस एक पेज पर हैं। इसहाक़ डार ने ब्रिक्स की रुकनियत के मामले पर रूसी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। We believe that a step-by-step approach based on trust and mutual respect has put the relationship on a very positive track. We agreed to identify specific projects in all areas of mutual interest on the bilateral agenda, including trade, economy, energy, connectivity, culture, educational relations and people-to-people contacts. रूस के नायब वज़ीर आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह रवाबित से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। Indeed, we are demonstrated increased depth and scope and interest in taking our relationship further today, touching all sectors of our economies, indicating interest where our countries could be helpful to each other. दोनों मुल्कों के नायब वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में तवानाई, तिजारत, कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत कनेक्टिविटी मंसूबों पर तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में दोनों मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तरका ताउन जारी रखने का इरादा किया। इससे पहले रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक दफ्तर खारजा पहुँचे तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म की सतह पर किसी रूसी रहनुमा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के नए मौके मुयस्सर आएंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी तामीरी गुफ्तगू हुई। मौजूद मेहमान से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में अफ्रीकैन ने सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में कसीरुलजहती ताउन के फ़रोग़ का इआदा किया। मौजूद मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के कलीदी किरदार की तारीफ़ की। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसल्लह अफ़वाज के अंत तक कोशिशें काबिल सताइश हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सदर बाइडन को अपनी तकर्रुरी की सफारती असनाद पेश की। इस मौके पर सदर बाइडन ने दहशतगर्दी के निमटने के हवाले से दो तरफ़ा ताउन को सराहा और कहा कि आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के हवाले से अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। उन्होंने अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम किरदार को उजागर करते हुए उन्हें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहमियत का हामिल करार दिया है।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि इस्लामाबाद में बेहतरीन इंतज़ामी ढांचे की तश्कील के लिए इस्लाहात का पैकेज ला रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि इस्लामाबाद में इंतज़ामी इख्तियारात कई इदारों के दरमियान तकसीम शुदा हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बेहतरीन इंतज़ामी ढांचा कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतज़ामी सलाहियतों और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। तालीम और सेहत के निज़ाम में भी बेहतरी लाने के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की एक एडवांटेज ये है कि इसका जो साइज़ है वो वफाकी हुकूमत के लिए किसी भी रिफ़ॉर्म को, किसी भी इस्लाह को पायलट करने के लिए एक बहुत अच्छा स्केल फराहम करता है। ना तो ये बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। अगर हम एक अच्छी इंतज़ामी मॉडल यहाँ पर तश्कील दें तो वो हर शोबे के अंदर दीगर सूबों में स्केल अप किया जा सकता है। इस्लामाबाद के लिए इस्लाहात का एक पैकेज वज़ा करें जिससे कि एक बेहतरीन इंतज़ामी ढांचा यहाँ तश्कील पा सके, जिससे शहरियों को बेहतर सहूलत हो। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे के हर शहर में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बनाने और रवायती मेले बहाल करने की हिदायत की है। लाहौर में साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हर शहर में पुलिस की डॉल्फिन फोर्स कायम की जाएगी और साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक कायम करने के साथ साहिवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी को फौरी पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला ने पाकपतन में मजहबी सियाहत और हड़प्पा में आसार कदीमा की हिफाजत और सयाहों की सहूलत के लिए जामे प्लान करने की भी हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा कि 5 साल की खराबियां दूर की जा रही हैं। पंजाब में तकर्रियाँ और तबादले अहलियत के मयार पर किए जा रहे हैं। सूबे में पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल के लिए नया महकमा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है जिससे अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और लोगों को रिलीफ मिले। अपनी छत अपना प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाई जाएगी और पहली मरतबा महज मिल्कियती कागजात और शनाख्ती कार्ड पर हाउसिंग कर्जे फराहम करने की स्कीम लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिम्मत कार्ड पर हर 4 माह बाद 15,000 रुपये मिलेंगे और जल्द गरीब अक़लियती भाइयों के लिए माइनॉरिटी कार्ड भी इशू किए जाएंगे। रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां सूबाई हुकूमत की नाअहली एक मरतबा फिर सामने आ गई। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी बार कमी के बावजूद फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं हुए। सूबाई हुकूमत की खामोशी पर आवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। लकी मरवत से अनवर ज़ेब मरवत की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुसलसल चौथी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद लकी मौरत से मुख्तलिफ अजला और मकामी सतह पर चलने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए और न ही महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से किराए में कमी के लिए कोई इकदाम किए गए हैं। लकी मरवत के ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किराए में कमी न करने की वजह से आवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के समरात से महरूम है और सूबाई हुकूमत ने इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि मकामी सतह पर इंतजामिया भी इस बारे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वफाक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है किराए में नाकाम हो चुकी है। गाड़ियों वाले जो है ना किराए फुल रह रही है। अवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत धरना और एहतजाजी सियासत से इज्तनाब करके सूबे में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देकर अवामी मसाइल के हल और उन्हें रिलीफ पहुँचाने के लिए कोशिशें करे। लकी मरवत से पेशावर, डेर इस्माइल खान और मियावाली समेत मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियाँ किराए में कमी से साफ इनकारी है, जिसकी वजह से आए रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर और ड्राइवर्स के माबैन झगड़े मामूल बन गए हैं। लकी मरवत के अवाम ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंतजामिया को किराए में कमी के हवाले से सख्त हिदायत देकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुसलसल 4 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद इसके समरात से अवाम अभी तक महरूम है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। अनवर ज़ेब मरवत, PTV न्यूज़, लकी मरवत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अकरबा फरवरी के आए रोज़ नित नए किस्से आया होने लगे। अली अमीन गंडापुर की नाअहली की इंतहा, अपने ही इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। डेरा इस्माइल खान के सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीक और तलबा को लावारिस छोड़ दिया गया। गंडापुर बिरादरान का तोहफा, उनका लगाया हुआ नाअहल कंट्रोलर इम्तहानात बच्चों और वालिदैन के लिए दर्द सर बन गया। 9वीं 10वीं के इम्तहानात में तकरीबन 400 तलबा का रिजल्ट ताहाल जारी नहीं किया गया। तकरीबन 2000 तलबा की रीचेकिंग दरख्वास्त पर भी काम न किया गया। क्या डेरा के गरीब तलबा अब वक्त गुजर जाने के बाद क्या 3 गुना ज़्यादा फीस जमा करा सकेंगे? बच्चों और वालिदैन का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर
طلبہ ذاتی پر نوٹس لے سکتے ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں کنٹرول امتحانات کی نااہلی پر نوٹس کیوں نہیں لے سکتے؟ مردان میں جامعات کی زمینوں کی فروخت کے حکومتی فیصلے کے خلاف لویا جرگہ کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں، تاجروں، طلبہ، سول سوسائٹی اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عدنان شاہ کی رپورٹ۔ مردان میں ریلی کا آغاز کالج چوک سے ہوا۔ شرکاء نے کمشنر آفس تک مارچ کیا۔ انہوں نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نعرے درج تھے۔ کمشنر آفس کے سامنے ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ دنیا میں تعلیم کے فروغ کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے تعلیم دشمن عناصر گزشتہ 11 سالوں سے خیبر پختونخوا پر مسلط ہے، جنہوں نے ماضی میں تعلیم عام کرنے کے دعووں کے برعکس اب زمینیں بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقررین نے صوبائی حکومت کے فیصلے کو تعلیم دشمنی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ جامعات اور رنگ روڈ کی زمینوں کی فروخت کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ باچا خان گریٹر کیمپس جس میں باچا خان میڈیکل کالج کے لیے 1000 کنال زمین، ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے 2000 کنال زمین اور عبدالولی خان یونیورسٹی کے لیے 2000 کنال زمین۔ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے یونیورسٹی کی زمین کو وہ فروخت کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان اداروں کو تباہ و برباد کریں جو یہ کرنے جا رہے ہیں، جو ان کی نیت ہے۔ جامعات کی زمینوں کو بیچنے کے فیصلے کے خلاف مردان میں عوام کی جانب سے مزید احتجاج کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت عوامی مطالبات کے آگے کیا رد عمل دکھاتی ہے۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد لودھنا کے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بھی کمی کے 5% کرایوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے بعد ضلع لودھنا کے ٹرانسپورٹروں نے بھی کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ لودھنا کی ضلعی انتظامیہ نے تمام گاڑیوں کا کرایہ 5% کم کر دیا ہے، جبکہ گوشت ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی کر دی گئی ہے۔ پہلے ہم بھرتے تھے 250 روپے، اب ہم دے رہے ہیں 220 روپے کرایہ ملتان سے لودھنا کا اور لودھنا سے ملتان کا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، حکومت کے مطابق ہم نے بھی اپنے ریٹ میں کمی کر دی ہے۔ کرایوں میں کمی کے بعد شہر کے اندر چلنے والی ٹرانسپورٹ اور شہر سے باہر چلنے والے ٹرانسپورٹ کے مسافروں نے کرائے پر ریلیف ملنے پر خوش ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہونے والی نمایاں کمی سے مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں 10% تک کمی کا براہ راست فائدہ عوام کو ہو رہا ہے۔ خاص طور پر مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں 10% کمی سے کھانے پینے کی ضروری چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہونے سے مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے اثرات ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ ننکانہ صاحب میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسران کے ہمراہ مختلف بس اڈوں کا دورہ کیا اور کرائے میں کمی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانہ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارک نے بھی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حکام کے ہمراہ شہر کے مختلف بس اڈوں اور ویگن اڈوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مسافروں سے کرایوں میں کمی پر عمل درآمد کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بس اور ویگن اڈوں پر کرایہ نامے نمایاں طور پر آویزہ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ خانیوال میں بھی ضلعی انتظامیہ نے کرایوں میں کمی پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے ویگن اڈوں کا دورہ کیا اور مقررہ کرایوں کی وصولی اور اڈوں پر دستیاب سہولیات کی جانچ پڑتال کی۔ ڈی سی نے مسافروں سے بھی مقررہ کرایوں کی وصولی کے بارے میں استفسار کیا۔ اس موقع پر محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ اوور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 12.17% کمی کا اعلان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں گلگت سے شیر محمد کی یہ رپورٹ۔ گلگت بلتستان میں بھی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے
वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया है। इन हलकों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अवाम को महंगाई से रिलीफ पहुँचाने के लिए नई कीमतों में पूरी रिलीफ देने पर उनके फैसले को सराहा है। पेट्रोल की कीमतों की कमी की वजह से जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में भी कमी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को पहुँचाने के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल से चलने वाली ट्रांसपोर्ट में 12.17% जबकि डीजल गाड़ियों के किरायों में 9.40% कमी कर दी गई है। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। हुकूमत पंजाब ने तालीम के शोबे में मुतादिद इस्लाहात की हैं। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा ने रिपोर्ट तैयार की है। सिद्रा आसिम वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के साथ मौजूद हैं। आइए इस बारे में मज़ीद भी तफसील जानते हैं। सिद्रा आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तरफ जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर कोशिश की जाती है कि हमेशा मायूसी फैलाई जाए और ख़ुसूसी तौर पे जो एक सियासी टोला है उसकी तरफ से कोशिश यही की जाती है कि जो बेहतरी भी आ रही है मुल्क में उसको भी जो है वो अवाम तक उस बेहतरी की जो एक होप जो वो जनरेट करती है वो ना पहुँचे और मायूसी जो है वो उसी को ही एक सियासी आला बना के फैलाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो बुलंद तरीन सतह पे गई और उसने 81,900 का जो 100 इंडेक्स है उसने क्रॉस किया और ये एक बड़ी कामयाबी है और ये शो करती है कि जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जो इन्वेस्टर है, उसका कॉन्फिडेंस जो है मईशत की सिमत के ऊपर वो क्या है। और इसी बुनियाद पे आपने देखा कि आज एक सुपर परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक मार्केट में देखी गई। ये इस चीज़ का भी आपको इंदिया देता है कि IMF का जो मुआहदा है वो 25 सितंबर को इंशाल्लाह कामयाबी से होगा और एक स्टेबिलिटी की तरफ जो इकॉनमी जा रही है ये उस चीज़ का भी आपको इंदिया देता है। और जो देखें मार्केट लीडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको वो जो नब्ज़ है मईशत की वो उनके ऊपर उनको इसका अंदाज़ा होता है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका स्टॉक मार्केट में जो आज एक आउट क्लास परफॉर्मेंस आपने देखी स्टॉक मार्केट के अंदर। और इसी तरह देखें बात ये है कि दुनिया तो आपको बता रही है, जिस तरह स्टॉक मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है कि मुल्क की सिमत बेहतरी की तरफ है, मुल्क स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहा है, उसी तरह दुनिया की जो क्रेडिट एजेंसीज़ हैं वो भी आपको यही बता रही हैं। आपको फिच हो चाहे वो मूडीज़ हो तो वो बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल से पॉजिटिव जा रहा है। जो उसकी डेट लायबिलिटीज़ हैं, जो उसके एक्सटर्नल फ्रंट पे चैलेंजेस हैं, वो स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर एक रिवाज है कि जो सियासी टोले हैं, जो जाली मूडीज़ और फिच बने हुए हैं, वो अवाम को बता रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क तबाही के दहाने पे है। लेकिन दुनिया के जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो आपको बता रही हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, स्टेबिलिटी की तरफ गामजन है और पॉजिटिव से स्टेबल से आप पॉजिटिव की तरफ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम रिव्यू करें कि ये इस माली साल के पहले 2 महीने के अंदर क्या प्रोग्रेस है, तो आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर पॉजिटिव आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो है अगस्त के महीने में 13% इंक्रीज़ आई है। तो इसी तरह जो मायूसी फैलाने वाला टोला है वो आपको बता रहा है जी 100 टेक्सटाइल के पता नहीं कितने यूनिट्स बंद हो गए, लेकिन आपको जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त में, जुलाई में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ नज़र आई है। अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर के अंदर 27% अगस्त के महीने में ईयर ऑन ईयर जो है वो इजाफा हुआ है। IT सर्विसेज की, एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल जुलाई और अगस्त के अंदर 7.2% आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तो ये देखें, हम नहीं क्लेम कर रहे कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बड़ी यहाँ मुश्किल हालात हैं, मुश्किल माशी हालात हैं। लेकिन इन मुश्किल माशी हालात में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है, उसके नताइज आपको नज़र आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के अंदर बेहतरी है। एक्सपोर्ट्स जो हैं
وہ پازیٹیو آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایئر آن ایئر ان کے اندر بہتری ہے اور اوور آل اس مالی سال کے اندر دیر از این امپروومنٹ ان دا ایکسپورٹ سائڈ. اگر ہم ریمیٹنسز کی بات کریں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, اور اس کو بھی جب یہ گری کچھ مہینے اور سال پہلے ہمارے دور میں, تو تب اس کا کہا گیا کہ جی لوگوں کا کانفیڈنس اس حکومت کے اوپر اٹھ گیا ہے اور اس وجہ سے اوورسی پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے. لیکن 44% اضافہ ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر. 5.9 بلین کی ریمیٹنسز آپ کی جولائی اور اگست میں پاکستان میں آئی ہیں, اور یہ بھی ایک 44% اضافہ بڑا میسو اضافہ ہے, جو اگر انہی سیاسی ٹولے کی اگر زبان میں بات کریں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر اوورسی پاکستانیز کا کانفیڈنس ہے اور ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ وہ پازیٹیو جو ہے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو معیشت کی سمت کا بتا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہلے 2 مہینے کے اندر اس مالی سال کے اندر جولائی اگست کے اندر 0.2 بلین کے اوپر آ گیا ہے, جو کہ ایک منسکیول, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبل ہے. اور یہ بھی الحمدللہ اس گورنمنٹ کی, اس پرائم منسٹر شہباز شریف کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس آج ایک سٹیبل ایکسچینج ریٹ ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سٹیبلٹی آگے بھی آنے والے ٹائم میں آپ کو ایک سٹیبل ایکسچینج ریٹ اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ, جو مارکیٹ بیسڈ ہے, آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بتا رہا ہے کہ وہ کتنا کم ہو گیا ہے, آپ کا خسارہ جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا, اور آپ کوئی ایڈیشنل ڈالر لائبلٹی آپ کریٹ نہیں کر رہے. اسی طرح اگر ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں تو وہاں بھی جو ہے 14 سیکٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو گروتھ دے رہے ہیں, اور ایئر آن ایئر 2.38% کا اضافہ وہاں نظر آیا ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریل سائڈ بھی آہستہ آہستہ پک کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہ کوئی بہت زبردست فگر نہیں ہے, لیکن ٹرینڈ پازیٹیو ہے. ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں, ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کتنی کم آ گئی, ایکسپیکٹیشن سے بھی کم آئی, اور یہ بھی انہی پالیسیز کا نتیجہ ہے جو اس حکومت نے ایک عام آدمی کے لیے لی ہیں, جو مشکل فیصلے کیے اس کے اب نتائج جو ہیں وہ آپ کو مہنگائی کی جو شرح میں جو کمی آئی ہے 9.6% آپ کا اگست کا فگر ہے. اسی طرح اگر ہم فوڈ انفلیشن کی بات کریں تو وہ 4% پہ ہے, اور یہ آپ کی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں جس میں پنجاب حکومت کا میں ضرور ذکر کروں گا, جس کی مانیٹرنگ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ انفلیشن میں بھی ایئر آن ایئر صرف 4% پہ آ گئی, اور اس کا اگر آپ موازنہ کریں 1 سال پہلے تو یہ 38% کے اوپر تھی, اور آپ کولیپس کی باتیں کر رہے تھے, آپ اس ملک کے اوپر ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے, لیکن جتنے اشاریے میں نے آپ کو بتایا آج الحمدللہ وہ بہتری کے ہیں, وہ مثبت جو ہے انڈیکیٹرز ہیں, اور انشاءاللہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. آپ نے پیٹرول کی پرائسز کا ذکر ہوا کہ وہ 330 روپے پہ تھیں پچھلے سال اسی مہینے کے اندر, آج وہ 250 کے اوپر ہیں. تو یہ بھی جو ہے اس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں, آپ نے سود کی شرح کی بات ہوتی تھی کہ سود کی شرح جو ہے وہ 25.5% پہ ہے, اور اس بہت زیادہ تھی, اور اس کے اندر انڈسٹری کے لیے انڈسٹری چلانا بڑا مشکل تھا, ایس ایم ای کے لیے اس شرح پہ لونز لینا بڑا مشکل تھا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار نیچے کی طرف آ رہی ہے, اور 17.5% کے اوپر آج جو ہے آپ کا کائبور کا ریٹ کھڑا ہے. اور یہ ٹرینڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹرینڈ انٹرسٹ ریٹ کا بھی انشاءاللہ, کیونکہ اب آپ کی انفلیشن کنٹرولڈ ہے, کہ وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, اور یہ آگے آنے والے, اور اسی طرح اگر انفلیشن کنٹرول رہی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ایم پی سی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس کے اندر ہمیں گنجائش, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز نے ایسی گنجائش پیدا کی ہے کہ ریل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم کھڑے ہیں, پازیٹیو ریل انٹرسٹ ریٹ, تو یہ بھی کمی کی طرف جو ہے وہ جاری ہے. اگر ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اپنی جو ہے وہ بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس کی کے سٹیج کے اوپر ہے, جو کہ فائنل سٹیج ہوتا ہے آپ کی بڈنگ پروسیس سے پہلے. تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مائل سٹون بھی ریچ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کرے گی انڈر دا لیڈرشپ آف میاں محمد شہباز شریف, اور یہ بھی چیزیں پازیٹیو, اور یہ مائل سٹون کے بعد انشاءاللہ ہم پرائیویٹائزیشن کو اور تیزی سے جائیں گے. ڈاؤن سائزنگ میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کتنا سیریسلی کام کر رہی ہے, ڈاؤن سائزنگ کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کا کتنا فوکس ہے,
اور کس طریقے سے PWD ہوئی, اور اس کے بعد اب درجنوں ادارے ہیں جن کا مرجر, جن کی ڈاؤن سائزنگ کے اوپر کام فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ ہر وہ کام کر رہی ہے, ہر شعبے میں کر رہی ہے, چاہے وہ بجلی کا شعبہ ہو, پیٹرولیم کا سیکٹر ہو, آپ کی کامرس ہو, آپ کی فائنانس ہو, آپ کے اور دیگر ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ہر شعبے میں محنت ہو رہی ہے اور چیزیں پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جتنے اشاریے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, یہ سب سے بڑی پریشانی ہے اپوزیشن کو کہ مہنگائی قابو میں آ رہی ہے تو ہم عام آدمی کو کس طرح مایوس کریں کہ وہ اس کے دلوں میں, اس کے ذہن میں پریشانی بٹھائیں. اگر پیٹرول کم آ رہا ہے, اگر ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں, ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بہتری کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے, تو جو ایک سیاسی ٹولہ ہے اس کی کوشش ہے کہ ہم کیسے اب اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کریں, ہم کیسے ان اشاریوں کو جو ہے وہ مایوسی میں تبدیل کریں. اور تبھی آپ کو یہ جو ایک پروپیگنڈا آپ کو نظر آتا ہے معیشت کے اوپر نظر آتا ہے, اور دوسرے جب بہتری کی طرف ملک جا رہا ہوتا ہے تو کوئی PTI کے لیڈر جو ہیں وہ اداروں کو حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ انتشار کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ملک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں KPK کے, وہ اپنی جلسے کی تقریر میں مرنے مارنے کی تقریر کرتے ہیں, وہ دست و گریبان ہونے کی ورکرز کو جو ہے ہدایت کرتے ہیں, اور وہ انتشار پھیلانے والی تقریر کرتے ہیں. تو یہ جو انڈیکیٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں, جس کے اندر مہنگائی, جس کے اندر آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو آج 81,900 کی حد جس نے کراس کی, جس کے اندر دیگر جو میں نے جن کا تذکرہ کیا, یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے, یہ وہ ڈر ہے اپوزیشن کو کہ ملک کہیں بہتری کی راہ پہ اگر چلا گیا تو وہ irrelevant ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں معیشت درست سمت کی طرف بڑھ رہی ہے, وہاں حکومت جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف بھی بڑا سیریسلی کام کر رہی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ باٹم 10 کے اندر رینک کرتا ہے. ایک عام آدمی اگر اس کا عدالتوں سے پالا پڑ جائے تو اس کے بچے اور اس کے بچے بھی جو ہیں ان کو انصاف ملنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ججز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے کہ کیسا ایک جج جو مہینے میں ایک کیس دیکھتا ہے ورسز ایک جج جو 25 کیسز جو ہے ریزالو کرتا ہے, تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے ہے نا, کوئی آپ نے معیار قائم کرنا ہے. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل عدالت کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے, اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اور اگر ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں, اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز لانی ہے جس سے ملک کے اندر بہتری ہوگی, تو یہاں بھی بیانیہ جو ہے وہ جو انتشاری ٹولہ ہے اس کا بیانیہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر مایوسی پھیلاؤ, اس کے اندر کنفیوژن پھیلاؤ, اور جو بہتری بڑی مشکل سے ہم نے اچیو کی 1.5 سال کے سفر کے اندر, اور اس حکومت نے خاص طور پہ جو بہتری ابھی جو چند ماہ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے, ان کی کوشش تھی, ان کو جانچتے بوجھتے ہوئے جب وہ حکومت چلا رہے تھے خان صاحب, تو ان کو پتہ تھا اس چیز کا کہ IMF کا معاہدہ کتنا لازم ہے, کتنا ضروری ہے, اور وہ اس معاہدے کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک کے گئے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جاؤں کہ جو حکومت آئے وہ پھنس جائے, اس ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہو, اس ملک کے اندر مہنگائی کا لہر آئے, اور پھر اس کو ہم نے الحمدللہ اس کو ہم نے کور کیا ہے, اور آج آپ درست سمت کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا آج اس پریسر کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں, اس کی پرچیزنگ پاور جو ہے, اس کی قوت خرید کو بہتر ہونا ہے, اور ہماری ہر ایفرٹ چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو, پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہر پالیسی ہماری اسی مقصد سے بنائی جاتی ہے اور اس پہ پہرا دیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر بہتری آئے, اس ملک کی معیشت کے اندر بہتری آئے, اور انشاءاللہ ہم اسی سمت کی طرف گامزن ہیں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف اسی طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے لیے یہ کوئی اینڈ گول نہیں ہے, ملک نے اس سے آگے بہت آگے جانا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ملک کو آگے کی طرف انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف لے کے جائیں گے, اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی, مہربانی. ٹھیک ہے, سو کٹ ہو گیا. وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل
मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। PSX ने 89,100 इंडेक्स क्रॉस किया है, जो इस बात का सबूत है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। हुकूमत पंजाब ने तालीम के शोबे में मुतअद्दिद इस्लाहात की हैं। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा सदर आसिम वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी सिदरा। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपकी मसरूफियत आजकल बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में हेल्थ और एजुकेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है। क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं? जी, हर ज़िले के अंदर ऑटिज़म स्कूल लेके आ रहे हैं। पहली दफ़ा आपने देखा स्कूटी स्कीम फॉर स्टूडेंट्स क्रॉस पंजाब। इसी तरह कॉमर्स कॉलेजेस जो हैं उन्हें IT हब्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। VCs की अपॉइंटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप गैप जो यूनिवर्सिटीज़ की थी वो मेरिट पे की है। आज आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इतना बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं। वो स्कूल्स जहाँ पे टीचर्स कम थे, 1 या 2 थे, या बच्चे 50 या 100 थे और वो अंडर परफॉर्मिंग थे, उनके लिए 50 अरब और बजट की बजाय इन्हें हमने पहली दफ़ा यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया ताकि वो ये स्कूल्स चलाएं और करीबन 80,000 के करीब जॉब्स जनरेट होंगी। और इसी तरह इनरोलमेंट मैसिवली इंक्रीज़ होगी। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक माँ ही सोच सकती थी कि इस मुल्क के बच्चों को क्या चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े मैसिव रिज़ल्ट्स हैं। और इसी तरह हम करिकुलम रिफॉर्म्स, टीचर सर्टिफिकेशन का रिजीम, क्योंकि टीचर सर्टिफाइड होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये सारा आगाज़ जैसे न्यूट्रिशन प्लान का किया, रिमोट एरिया से किया। ऐसा नहीं कि लाहौर से हो गया, सरगोदा से हो गया। इसके पीछे क्या स्कूल ऑफ थॉट था? इसके पीछे देखें डेटा ड्रिवन डिसीजंस। तो ये 3 अजला वो हैं जो स्टंटिंग और मैल न्यूट्रिशन में नंबर 1, 2, 3 थे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उन्हें पहले एड्रेस करें। अगर 40s में मैल न्यूट्रिशन, इसका मतलब है कि हर दूसरा बच्चा उससे अफेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर की ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि डिसीजंस मेरिट बेस्ड होने चाहिए। हम देख रहे हैं रिवैम्पिंग भी होने जा रही है। स्कूल जो है सरकारी स्कूल, जैसे अब वो जो पुराने ज़माने का कल्चर था, पुलिस कल्चर, अब वो बदल गया और थाने वैसे नहीं लगते। तो हमें लगता है कि हम ये उम्मीद करें कि जो सरकारी स्कूल थे, टूटी फूटी बिल्डिंग थी, वो जो फरसुदा निज़ाम था, हम सोच सकते हैं कि इसका भी खात्मा होने जा रहा है। इसका हमने पायलट भी कर दिए और चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव भी कर दिए। आज जो स्कूल्स हम देने जा रहे हैं 13,000, उनमें से 6,000 का पहला इवेंट है ये स्कूल्स। जी देखिए, इनके रिजल्ट्स हमारे से बेहतर हैं। फिर ये बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये एक बच्चे के पीछे जाते हैं, बिकॉज पर चाइल्ड उन्हें कॉस्ट मिलती है। हमें आधे पैसों के अंदर काम करके दे रहे हैं। रिजल्ट्स हमारे से बाहर के 15% बेहतर हैं। तो जब तक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ नहीं चलेगा, कई चीज़ें हल नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। हमने बात की सूबाई वज़ीर तालीम से और हमने ये जो क्रस्ट हमें समझ आया वो ये था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है तालीम के निज़ाम को मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी और एक नया सिस्टम जो है हम उम्मीद करते हैं कि सामने आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदरा, आप हमें आगाह कर रही थी। और हुकूमत पंजाब ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पंजाब के 12 शहरों में 22 सितंबर बरोज़ इतवार को दाखिला टेस्ट के लिए दफ़ा 144 लागू होगी। उम्मीदवारों और अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं हो सकेगा। इम्तिहानी मराकज़ से 100 गज़ के फासले तक गैर मुतल्लिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ होगी। इम्तिहानी मराकज़ और इसके इर्द गिर्द किसी किस्म के एहतजाज, मुज़ाहरे, हर किस्म के हथियार, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स की पाबंदी होगी। दफ़ा 144 लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, DG खान, साहिबाल, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात और रहीमिया खां में नाफिज की गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में भी काश्तकारों में किसान कार्ड की फराहमी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील जानते हैं उमर फारूक से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन के अजला में भी किसान कार्ड की फराहमी का अमल शुरू हो गया। किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए जिला भर में 21 रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जहां पर अब तक 1 लाख किसानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है, जबकि मेरिट पर आने वाले किसानों को किसान कार्ड की फराहमी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। गुजरांवाला में, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरांवाला है, सियालकोट है और नरवल है, वहाँ हमने 66,676 जो हमारा टारगेट है कि हमने इतने किसानों को रजिस्टर करना है इस साल, और उसमें 40,637 हम रजिस्टर कर चुके हैं, और जो हमारे पास कार्ड मौसूल हो गए हैं वो 6,794 कार्ड मौसूल हो गए हैं, और हमने 1,551 जो हैं कार्ड किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं।
मेंबरान असम्बली भी किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा करके किसानों में किसान कार्ड तकसीम कर रहे हैं, जबकि किसानों के जायज मसाइल भी वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक हल करवा रहे हैं। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शुरू किए जाने वाले किसान कार्ड को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इससे ज़राअत के शोबे में मजीद तरक्की और खुशहाली आएगी। उमर फारूक, PTV न्यूज़, गुजरांवाला। और मौसम की कैसी सूरत हाल रहेगी, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं अब्दुल कदीर के जानिब। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नौकुंडी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में भी 42, सक्खर में 41, मुल्तान और सरगोदा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। और अब आप खबरनामे में जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।